ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें n नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए हैं इन एन एरे, और वी आर सपोज टू फाइंड k number of non-empty subsets, k number of non-empty subsets, and the sum of each subset should be same. So this is the problem statement. और इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इस पोस्ट में, इस Geeks for Geeks पोस्ट में जो यूज किया है वो बिटमास्क एंड डीपी से सॉल्व किया है। तो हम ये सॉल्यूशन देखेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व यूजिंग बिटमास्क एंड डीपी। So basically I'll just explain with a small example, और जो main components है algorithm के, we'll go through this example. So suppose we have this 6 numbers here, or we are supposed to find three non-empty subsets. So k equal to 3 here, k equal to 3 non-empty subsets, और सबका हर subset का sum इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे we have got total sum of the array is equal to 60. The array sum is 60 here. तो हर तीन सबसेट में तोड़ना है, तो हर सबसेट का सम 20 होगा, 20 20 20. So let's say target is the sum of each subset, and so here target is equal to 20 in our case. अब क्या करते हैं, डीपी एक एरे बनाते हैं, और डीपी ऑफ मास्क, ये मास्क एक बाइनरी वेरिएबल है। अगर हमारे पास 6 नंबर्स हैं तो 6 नंबर्स 6 बिट्स का ये मास्क होगा। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं एरे में, इनिशियल एरे में, उतने नंबर्स का ये मास्क, उतने डिजिट्स का ये मास्क होगा। और उस मास्क में जो भी बिट सेट होगा वो डिनोट करेगा कि that number has been taken to construct some subsets, some x number of subsets. We don't know how many subsets, but some x number of subsets has been formed by taking the those numbers which have bit mask set. So अब dp equal to dp of mask is equal to 0। अगर कोई भी मास्क है, सपोज 1 0 0 1 1 0 0 1 1, कोई भी मास्क है, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो वो हमें बताता है कि जो भी मास्क में हमने नंबर ले लिए हैं, सपोज 7 और 8 नंबर्स हमने ले लिए हैं सबसेट क्रिएशन के लिए, उन 7 या 8 नंबर्स को लेकर we can form some x number of subsets. We don't know x yet, but we can form some x number of subsets, और हर सबसेट का सम इक्वल टू टारगेट होगा। सो dp of mask इक्वल टू 0 हमें ये बताता है कि we can create some x number of subsets with each subset sum equal to target. अब so initially we will set for dp of all the masks equal to -1, denoting that we have not calculated the value for this particular mask. और अब let's say we are going to calculate the dp of this mask 1000011. okay, so यहाँ तक समझ में आ गया ना? मतलब you can respond अंकिता अगर हाँ ठीक है, हाँ यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब ये स्मॉल एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमको डीपी ऑफ 1000011 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फाइनली हमारा टारगेट क्या होगा कि हमको डीपी ऑफ ऑल वंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और हम आगे देखेंगे कि हमें उसकी वैल्यू क्यों चाहिए, और उससे हम कैसे बता सकते हैं कि the problem statement was कि can we divide these 6 numbers into 3 subsets with equal sum। तो आंसर yes और no में होगा कि क्या is it possible or not। तो हम dp of all ones कैलकुलेट करेंगे, और उससे हम आगे देखेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं is it possible or not। So for now we will calculate dp of 1000011, और initially it is set to -1। तो
1000011 हम कई तरीके से रीच कर सकते हैं. तो सपोज वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ दिस 000011. ओके, सो एज वी सेड द डेफिनेशन ऑफ डीपी क्या था कि मास्क में जो भी बिट सेट है, अगर हम उससे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब सबसेट तैयार कर सकते हैं, ईच सबसेट का सम टारगेट हो, तो वो 0 वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पे हमको लास्ट 2 नंबर्स ले रहे हैं. ओके, लास्ट 2 नंबर्स ये हैं 18 और 12, और वी कैन सी दैट 18 और 12 actually makes a subset with sum equal to 20, right? Sum equal to target, correct? Yes. So we already know that this dp of 0011 is equal to 0 by our definition of this dp mask. Okay, so dp of this equal to 0 now. dp of 0011, this number. Now we have an option to, let's say we want to include this first number, 0th index, number 4, we want to include it to create a subset. तो क्या करेंगे, हमारा अभी करंटली सम 0 है, और 0 और प्लस करंट नंबर 4 is actually less than 20. Okay, so whenever the dp of current mask is 0 and plus the current number we are including, if the sum is less than 20, less than target, then we are going to include it in our subset and update the dp value. Okay, so in the algorithm, if we just see inside the for loop, so हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हर एक मास्क को sequentially ट्रैवर्स कर रहे हैं. सबसे पहले मास्क की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, and we will go till 1 1 1 1 1 1. Okay, so 0 से all ones तक हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, और we will come to this condition later. And for each number, like for each number in our main array, we are going to see whether we can take it or not. So अपने example में यहाँ पे we have already reached this stage, or we are now deciding whether we can take the first number or not, number 4 in our subset. Okay, so as we can see, number 4 has not been taken yet, so we can include it. So यहाँ पे यही चेक कर यहाँ पे ये हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा ith नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड है मास्क में या नहीं. तो दिस इज अ सिंपल बिट मास्क ऑपरेशन which is used to check whether ith number has been already included or not. तो अगर ith number included नहीं है तो हम उसको ले सकते हैं, and dp of current mask प्लस जो ith नंबर हम ले रहे हैं, अगर वो टारगेट से लेस है, लेस देन और इक्वल टू है, तब हम ith नंबर को इंक्लूड करेंगे. करेक्ट. और यहाँ पे हमारा 0 + 4 इज एक्चुअली लेस देन 20, तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे. ये कंडीशन क्यों आ रही है, ये कंडीशन हम क्यों आ रही है, लाइक व्हाई वी आर चेकिंग दिस कंडीशन कि मास्क प्लस टारगेट एरे वैल्यू लेस देन टारगेट, क्योंकि सपोज दिस वैल्यू अगर ये 40 होती, सपोज आई जस्ट मॉडिफाई दिस टू 40, नॉट 40, लेट मी से 45. ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अगर हम 45 और ये लास्ट 2 नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, ओके, तो ये 8 और 12 तो ऑलरेडी एक सबसेट फॉर्म हो चुके हैं. करेक्ट, 8 और 12 तो एक ऑलरेडी सबसेट फॉर्म कर चुके हैं, जिसका सम टारगेट है 20 है. एंड टेकिंग दिस थर्ड नंबर 45 विल नेवर मेक सम सबसेट्स where all the subset have 20 sum, right? क्योंकि इसका वैल्यू 45 है. तो we know for sure कि taking this 45, 8 and 12 can never make like sum 20 for each subset. इसलिए we are going, हाँ, basically if that number is greater than the number of divisions, मतलब then we cannot have that number included in the set. Like 20, एक set का sum 20 आना चाहिए, अगर 21 लेते हो उसमें, तो correct जनरल ही नहीं आएगी, right? हाँ, exactly. हाँ, 21, अगर ये 21 होता तो this would have exceeded the our current sum. मतलब ये 0 है, और ये 0 अगर नहीं भी होता, any value between 0 to 20 अगर होता, और we are taking 21, so it would exceed our sum
of a subset, so we cannot Right. take it. Okay, इसलिए that check is there. Okay. और So अगर not only 21, but it can be any number between like 0 to 20. But if it's exceeding the target, we don't consider it. Okay. हाँ हाँ. So यहाँ पे ये यहाँ पे अब ये डीपी ऑफ कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जब, तो मॉड ऑफ टारगेट कर दे रहे हैं, तो दिस इंश्योर्स दैट वो ऑलवेज 20 से लेस देन होगा. तो अब ये मॉड ऑफ टारगेट क्यों कर रहे हैं, विल सी. ये एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा. ओके, सो नाउ दैट वी नो दैट ओके, ये फर्स्ट वैल्यू इंक्लूड करने पे वी आर नॉट गेटिंग अ वैल्यू ग्रेटर देन 20, सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड इट. So we have included it in our mask, and we have also updated the dp value of this mask, which is equal to 4. Okay, now suppose we can also reach this particular mask 1000011 from another way. How? Suppose we have already taken this first value and the last value. Okay, and now if we take the second last value, we'll reach this mask 1000011. Okay, so the initial value of this one, like taking the first value and the last value is going to be like 14, because the sum of the first and the last value is 14. Not 14 actually, 16, right? Yeah, there Yes, was one 16. delete. Okay, so this You is deleted something. वो starting में 4 के बाद भी कुछ था, right? 16 था शायद. oh अच्छा, okay, 4 and I guess it was 16. Yes, 16. तो इसका सम 20 हो गया. ओके, हाँ. तो सपोज हम फर्स्ट नंबर अब ले रहे हैं, और नाउ सबसे पहले इसका एक्चुअल वैल्यू पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर जब हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो डीपी की वैल्यू कितनी है, डीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर मास्क. सो एज वी सॉ अर्लियर कि अगर वो टारगेट से कम होता है सम, तो वी आर गोइंग टू टेक इट. हाँ, वी आर गोइंग टू टेक इट, और डीपी की वैल्यू वो सम हो जाएगी. तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम 16 है, तो वी ऑलरेडी नो प्री हैंड दैट दिस डीपी वैल्यू इज गोइंग टू बी 16, व्हिच इज लेस देन 20. अब हम यहाँ पे सेकेंड लास्ट नंबर इंक्लूड करने वाले हैं. सेकेंड लास्ट नंबर इज 8 हियर. तो 8 अगर इंक्लूड करते हैं इज ग्रेटर देन 20, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट. ओके, and the dp value of this particular mask remains 4. Okay, it is not going to change. So basically what we are doing is हम हर मास्क को sequentially process कर रहे हैं ना, mask equal to 0, mask equal to 1 and so on and so forth. तो हम ये हम केस 1 में क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज ये मास्क पहले प्रोसेस हुआ. ओके, मतलब ये मास्क पहले प्रोसेस हुआ, और ये मास्क प्रोसेस जब हो रहा था तब हम फर्स्ट वैल्यू इंक्लूड कर रहे थे, फर्स्ट वैल्यू. ओके, क्योंकि हम हर मास्क के लिए हर एक वैल्यू इंक्लूड करने वाले हैं. ओके, यहाँ पे हर मास्क के लिए हर एक वैल्यू इंक्लूड करने वाले हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग इज केस 1, जो हमारा ये केस 1 है, केस 1 में हमारा हम सपोज मानते हैं कि ये मास्क पहले प्रोसेस हुआ और ये वाला मास्क बाद में प्रोसेस हुआ. ये है हमारा केस 1. ओके, तो अगर ये मास्क हमारा ये जो हाईलाइटेड है अभी वो पहले प्रोसेस हुआ है, तो ये डीपी ऑफ 1000114 हो जाएगी, वैल्यू पहले ही सेट हो जाएगी. और उसके बाद जब हम ये वाला मास्क कैलकुलेट करेंगे 1 ऑल zeros and 1, और जब हम ये सेकेंड लास्ट वैल्यू को इंक्लूड करना चाहेंगे, तो we'll see that it is exceeding the value of 20, तो will not update it. ठीक है, और since it is already updated to 4, वो वैल्यू 4 ही रह जाएगी. ठीक है, like I hope this makes sense. मतलब ये समझ में आया क्या? हाँ, ये समझ में आया. मेरा मेन इशू मॉड्यूलस टारगेट वाला था. हाँ, ठीक है. तो ये हमारा ठीक है. तो हमारा केस 1 हमने कंसीडर कर लिया कि ये वाली वैल्यू हम लोग पहले इस मास्क के बाद ये मास्क कंसीडर कर रहे हैं. सपोज नाउ
ये जो पर्टिकुलर मास्क है हम रिवर्स ऑर्डर में अगर ट्रैवर्स करते सपोज, ओके, तो क्या होता? तो सबसे पहले हम लोग ये मास्क ऑलरेडी हम इस मास्क पे आ चुके हैं। ये लेट मी हाईलाइट दिस सो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हमारी 16 थी, ओके, और वी हैव ऑलरेडी सेट इट टू -1। सी, वी हैव ऑलरेडी सेट इट टू -1, ओके। सो यहाँ पे 16 है हमारी इस मास्क की वैल्यू, 1 ऑल 0 एंड 1, और जब we are going to take the this second last value of 8, it is going to exceed value 20, okay, so we are not going to take it, और dp of ये जो वैल्यू है वो -1 ही रह जाएगी, ठीक है, ये -1 रह जाएगी। सो ये -1 क्या बता रहा है कि there is no way to form a subset, okay, with these three numbers included, और जिसका सम 20 हो, हर सबसेट का सम 20 हो, ठीक है, there is no way to form it, okay। सो इसका ये dp वैल्यू -1 हो जाएगी, और देन इस मास्क के बाद हम अगर ये मास्क पे आते हैं और हम फिर फर्स्ट वाली वैल्यू लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 + 4 > 20, सो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सो फाइनली लाइक वी सी कि ये जो फाइनली हमारा मास्क था जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी, चाहे हम किसी भी तरीके से आए, मतलब किसी भी ऑर्डर में आए, फर्स्ट दिस मास्क देन दिस मास्क, और फर्स्ट इन द रिवर्स वे, ओके, किसी भी तरीके से आए, इस डीपी की वैल्यू 4 हमेशा होगी, ओके। सो ये 4 वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है कि ओके, सो मे बी आई शुड हैव लेड विद दिस, स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था आई गेस। डीपी की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो वो ये बता रहा है कि ओके, हमारे पास ये जब लास्ट 2 वैल्यूज ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था हमने, तो हमारा डीपी की वैल्यू 0 थी, और वो डिनोट कर रहा था कि देयर एग्जिस्ट सम सबसेट, ओके, एक्स नंबर ऑफ सबसेट्स जिसका सम सबका हर सबसेट का सम टारगेट है, और ये फर्स्ट वाली वैल्यू इंक्लूड करने पर हमारा मतलब ऐसा हो रहा है कि वी आर डन विद द अर्लियर सबसेट, लाइक वी आर डन विथ दिस सबसेट, ओके, ये जो 2 नंबर एक सबसेट फॉर्म कर रहे थे, ओके, वी आर डन विद दैट सबसेट, एंड वी आर ऑन आवर वे टू क्रिएट अ नेक्स्ट सबसेट, ओके। अगर लेट्स से कि ये 2 नंबर को लेकर वी हैड क्रिएटेड ऑलरेडी एक्स सबसेट, ओके, और वो x नंबर ऑफ सबसेट का हर सबसेट का सम टारगेट था। नाउ वी आर ऑन आवर वे टू क्रिएट x + 1th सबसेट, ठीक है। तो हम ये जो पहले x सबसेट फॉर्म कर चुके हैं उसको भूल जाएंगे, वी ऑलरेडी नो दैट उन सबका सम टारगेट है। नाउ वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ओनली ऑन द न्यू x + 1th सबसेट विच वी आर गोइंग टू फॉर्म, और उस नए सबसेट में हमारा कौन सा नंबर है? सिर्फ एकमात्र ये पहला नंबर है, ठीक है, पहला नंबर नंबर 4। तो इस x + 1th न्यू सबसेट का सम कितना है? 4, ओके। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग स्टोर्ड इन डीपी ऑफ एनी मास्क। सो यहाँ पे मैंने मतलब एक समराइज किया है कि व्हाट इज एक्चुअली डीपी ऑफ अ मास्क। सो डीपी ऑफ अ मास्क like is like a mask, कोई भी मास्क है हमारा, सपोज लेट्स जस्ट से हमारा मास्क ये है, ओके, ये है हमारा मास्क करेंटली, इसमें से मतलब ऑलरेडी and suppose I'll just highlight it with something which is meaningful, थोड़ा explanation में easy होगा, okay, so I have highlighted 2 ones with red, okay, and other ones are black here, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि जो भी हमारे ones black में है, they already form some x number of subsets, और हर सबसेट का सम टारगेट है, ठीक है। so we don't need to concentrate on them। जो ये रेड वाले ones हैं वो हमारे अभी करंट सबसेट फॉर्म करने में यूज हो रहे हैं, ओके, और ये जो रेड में नंबर्स हैं उनका सम, मतलब जो करंट
करंट सबसेट में हमारा सिर्फ ये फर्स्ट नंबर है और ये वाला नंबर होगा करंट सबसेट में, ठीक है। तो करंट सबसेट का जो सम है वो डीपी में स्टोर होगा, ओके। सम ऑफ करंट सबसेट, तो डीपी की वैल्यू मतलब ये है डीपी। और अब इसीलिए अब हम अब यहाँ थोड़ा क्लियर होगा कि व्हाई वी आर डूइंग दिस टारगेट बिजनेस, मॉडुलस ऑफ टारगेट बिजनेस। सो सपोज डीपी ऑफ मास्क, दिस करंट मास्क, ओके। So let me just do this. Suppose only one mask is red, okay, one is red and others are black here. तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा करंट मास्क करंट मास्क हमारा ये होगा, आई थिंक इट्स गोइंग लॉन्ग बट ठीक है। तो करंट मास्क हमारा ये है, ओके। और वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट नंबर और यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर सेट करने वाले हैं। तो करंट मास्क अगर सपोज ये इस डीपी की वैल्यू कुछ है के है सपोज, तो ये डीपी की वैल्यू और प्लस जो हम नया वैल्यू लेने वाले हैं, नो सपोज दिस वैल्यू इज 0, सॉरी फॉर दिस। तो सपोज जो भी हमारा करंट मास्क है, ओके, करंट मास्क है वो हमारा 0 वैल्यू है सपोज। तो हमको पता है कि डीपी ऑफ मास्क इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, ओके। यानी मतलब जितने भी सबसेट फॉर्म हो रहे हैं उन सबका सम टारगेट है। नाउ वी आर गोइंग टू इंक्लूड अ न्यू नंबर ith सबसेट पे जो है। तो अगर अब हम सिर्फ करंट सबसेट को कंसीडर करने वाले हैं, मतलब हमारा जो ऑलरेडी x नंबर ऑफ सबसेट फॉर्म हो चुका है इस मास्क से जो x नंबर ऑफ सबसेट फॉर्म हो चुका है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो मतलब सब हर सबसेट का सम टारगेट है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। जब हम नया वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं, ये नया नंबर इंक्लूड करने वाले हैं यहाँ पे 1, तो हम इसको अपडेट करेंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर है, मतलब जो करंट सबसेट में से एकमात्र नंबर यही है अभी, करेक्ट। अभी हमारा करंट सबसेट में यही एक नंबर है ना, बाकी सारे तो पुराने वाले सबसेट्स में इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ, तो क्योंकि पुराने जितने सबसेट हैं जिसमें ये ब्लैक वंस हैं, वी आर नॉट कंसीडरिंग देम एट ऑल, दे ऑलरेडी फॉर्म द रिक्वायर्ड सबसेट। तो करंट सबसेट में हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, तो उसका करंट सबसेट का सम क्या है? ARR ऑफ 0, ओके। उसी तरह से इफ नेक्स्ट स्टेप में अगर हम सपोज इस वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा ARR ऑफ 7, ओके। क्योंकि अब हमारे करंट सबसेट में 0th इंडेक्स का और 7th इंडेक्स का ही नंबर है, तो ऐसे हम और ये अभी हमारा लेस देन टारगेट है, सपोज लेस देन टारगेट है, तो हम ऐसे नए नए नंबर्स ऐड करते जाएंगे। फिर ये एक नंबर ऐड करेंगे करंट सबसेट में, इसको भी ऐड कर देंगे, एरे ऑफ मे बी आई थिंक दैट इज 5, ओके। तो जब तक ये वैल्यू टारगेट से बड़ी नहीं होगी, वी आर सेफ कि हाँ करंट सबसेट में हमने ये 3 रेड वंस इंक्लूड किए हैं, और अभी आगे पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो इसको टारगेट इसके सम को टारगेट कर देगा, ओके। अभी इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि दिस सम इज अभी टारगेट से कम, दिस वैल्यू इज लेस देन टारगेट। सो अभी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ और नंबर्स इंक्लूड करके हम इसको इक्वल टू टारगेट कर सकते हैं। तो हम तब तक इसको नए नए नंबर्स को ऐड करते रहेंगे, और जैसे ही वो मतलब टारगेट अगर इफ दिस वैल्यू बिकम्स टारगेट, तो मॉड्यूलस ऑफ टारगेट लेंगे तो क्या होगा? दिस सम इज इक्वल टू टारगेट, तो मॉड्यूलस ऑफ टारगेट लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब हमको पता चल गया कि जो ब्लैक में वंस थे वो तो x नंबर ऑफ सबसेट्स बना ही रहे थे, अभी जो ये रेड में वंस हैं वो भी एक नया सबसेट बना रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है? टारगेट, करेक्ट। क्योंकि इन तीनों नंबर्स का सम क्या था? टारगेट था, ठीक है। तो अब ये जो तीन रेड वंस हैं वो भी अब ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिस सबसेट इज कंप्लीटेड नाउ, ओके। दिस इज कंप्लीटेड।
और ये जो करंट हमारा डीपी वैल्यू है, इस मास्क की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे मॉडुलस टारगेट करेंगे, ओके, और फिर से ये 0 हो जाएगा, ओके. So this is target modulus target, and this is going to be 0, okay, because this sum is already target, we know this. So target modulus target is going to be 0, ठीक है. So dp of any mask अगर 0 होता है तो हमने ऑलरेडी बताया, हमने पहले एस्टेब्लिश कर लिया है कि dp of any mask equal to 0 means that we are going to get some x number of subsets. In our case यहाँ पे क्या है, x plus 1 number of subsets, ठीक है. ऑलरेडी x नंबर ऑफ सबसेट्स थे हमारे ब्लैक में, हमने रेड वंस लेने चालू किए और x plus 1th सबसेट क्रिएट कर लिए. तो इन दिस केस वी हैव x plus 1 नंबर ऑफ सबसेट्स जिसका हर सबसेट का सम टारगेट है. ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस मॉडुलस ऑफ टारगेट. सो बेसिकली वी आर ट्रैकिंग ईच एंड एवरी सबसेट सीक्वेंशियली, और जैसे ही एक सबसेट हमको ऐसा मिल जा रहा है जिसका सम टारगेट है, हम उसको भूल जा रहे हैं, हम उसको एक अलग कोने में रख के नए सबसेट की खोज में निकल रहे हैं, ठीक है. तो मतलब बेसिकली ये है. और फाइनली बस एक छोटा सा पॉइंट है विच मे बी ऑब्वियस. तो फाइनली हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी मास का वैल्यू अगर 0 होगा तो देयर एग्जिस्ट सम x नंबर ऑफ सबसेट. सो हाउ डू वी नो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स वी हैव गॉट. सो और हमारा फाइनल एम क्या था, हमारा फाइनल एम था कि ये पता करना कि क्या ऐसे k नंबर ऑफ सबसेट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें सारे सबसेट का सम टारगेट हो. तो हमारा मेन एम क्या है कि dp ऑफ ऑल वंस शुड बी इक्वल टू 0. अगर ऐसा है तो हमारा आंसर होगा यस. कैसे? क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट सारे नंबर्स को इंक्लूड करके वी कैन फॉर्म सम x नंबर ऑफ सबसेट्स, और हर सबसेट का सम क्या है, टारगेट. लेकिन वो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k होनी चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बोला है कि वी हैव टू फॉर्म k नंबर ऑफ सबसेट्स, नॉट k minus 1, नॉट k plus 1, एग्जैक्टली k नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है. तो यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि x नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्म कर रहे हैं, तो x की वैल्यू एटलीस्ट k तो होनी चाहिए, ठीक है. एटलीस्ट क्या मतलब एग्जैक्टली k होनी चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ वी आर एबल टू फॉर्म k नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है. तो दिस इज इजी टू सी. हमारे पास x नंबर ऑफ सबसेट्स थे और हर सबसेट का सम टारगेट है, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है, क्योंकि दैट्स व्हाट वी हैव रीच्ड हियर. ओके, जो भी x plus 1, x plus 2, जो भी हम नया सबसेट क्रिएट कर रहे हैं उन सबका सम टारगेट है. तो वी ऑलरेडी नो दैट ईच सबसेट हैज अ सम ऑफ टारगेट. सो x इनटू टारगेट हमारा टोटल सम है, ठीक है. तो और हमने मतलब ये सारे नंबर्स इंक्लूड कर रखे हैं, तो टोटल सम हमारा क्या है, एक्चुअली इनिशियल सम था. ओके, इनिशियली जैसे इन आवर केस हमारा सम 60 था, सारे नंबर्स को इंक्लूड करके सम 60 था. तो हमको पता है कि x इनटू टारगेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम, ठीक है. तो x we know that x इक्वल टू सम बाय टारगेट, और वी सम बाय टारगेट हमारा क्या है, इस इक्वेशन से सम बाय टारगेट क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है. करेक्ट, राइट? हाँ, डेफिनेटली आई गॉट दिस पॉइंट एक्चुअली. ओके, हाँ, ठीक है, थैंक्स. तो ये यहाँ पे मतलब ये एस्टेब्लिश कर देगा कि हमारा जो भी x नंबर ऑफ सबसेट्स हम बोल रहे थे कि x इज अननोन, फाइनली वी नो कि when we reach the final stage of all ones, at that instant we know कि x की वैल्यू क्या है, और वो x की वैल्यू k है. मिडिल में हमको नहीं पता होगा मे बी, लेकिन फाइनली हमको पता है कि we have found k number of subsets और each सबसेट का सम 0 है. So that's it. Like this is the entire algorithm here. और I hope कि सबको समझ में आया हो. Thank you so much. Yeah, thanks. I just end this recording.